Hello students, today we will discuss about time independent perturbation theory for non-degenerate case. But before this, we will discuss first what exactly the perturbation means. In the development of quantum mechanics, only very simple physical situations have been treated with the help of Schrödinger equation that can be solved exactly. But we know that in practice, exactly solvable problems are rare. For the majority of the systems of physical interest, the exact solution of Schrödinger equation presents mathematical difficulties. So, various approximate methods of solving the wave equation have been devised, which leads to more or less accurate evaluation of energy value and wave function. So, perturbation theory is based on the assumption that the problem we wish to solve is in some sense only slightly different from a problem that can be solved exactly. So, in the case where the deviation between the two problems is small, perturbation theory is suitable for calculating the contribution associated with this deviation, and this contribution is then added as a correction to the energy and the wave function of the exactly solvable Hamiltonian. So, perturbation theory builds on the known exact solutions to obtain the approximate solutions. So, in many cases, we can say that true wave functions can be solved only when certain minor terms are neglected. So, these minor terms, they are treated as a perturbation. Now, the perturbation theories, we can say that they are of two kinds: time independent perturbation theory and time dependent perturbation theory. So, in the syllabus of MSc second semester, only time independent perturbation theory is there. So, we will discuss about the stationary or time independent perturbation theory. It is called the time independent because the Hamiltonian here is independent of time. This theory, it is concerned with finding the changes in the discrete energy levels and eigenfunction of a system when a small disturbance is applied. So, in such cases, the Hamiltonian H in the Schrödinger wave equation, it can be written as the sum of two parts, H naught and H prime, where H naught is of sufficiently simple structure that इसका जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो एग्जैक्टली सॉल्व हो सकता है, बल्कि जो दूसरा है H प्राइम वो बहुत छोटा है, सो दैट इट कैन बी रिगार्डेड एज अ पर्टर्बेशन ऑन H नॉट. यदि हम इसको समझना चाहें तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं दैट सपोज हमारा हैमिल्टोनियन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में कितना है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. दिस इज हैमिल्टोनियन फॉर केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर. और हम ये जानते हैं कि ये एग्जैक्टली सॉल्वेबल प्रॉब्लम है. पर यदि हमारा प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, सपोज हमारा प्रॉब्लम है कि इसमें प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स टू द पावर 4 और आ गया. यदि ए और बी बहुत छोटे हैं तो ये माइनर टर्म्स आ गई, इनको यदि हम हटा दें इसमें से, इस हैमिल्टोनियन में से, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली सॉल्वेबल प्रॉब्लम है. तो हम क्या करते हैं, ये एग्जैक्टली सॉल्वेबल का हैमिल्टोनियन अलग और ये जो है प्रॉब्लम उसको हम पर्टर्बेशन मान लेते हैं. अब जब इससे जो हमारे रिजल्ट निकलेंगे उसको हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो नोन है, इसका आइगन फंक्शन नोन है, इसकी एनर्जी वैल्यू नोन है, ठीक है, तो नोन फंक्शन है. तो अब इससे जो हमारा आइगन फंक्शन आएगा या एनर्जी वैल्यू आएगी उसको हम इसमें ऐड एज अ करेक्शन ऐड कर देंगे, तो हमारा अब ये अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आ जाएगा दिस प्लस दिस. ठीक है, सो दैट इज द आइडिया ऑफ perturbation. Now we will discuss about the non-degenerate case. In non-degenerate case, we can say that if corresponding to each energy level or eigenvalue, there is only one wave function, then the system is called non-degenerate system. जैसे कि यदि एक एनर्जी आइगन वैल्यू है तो उसके लिए सिर्फ एक वेव फंक्शन है ना, तो इसको हम कहते हैं नॉन डिजेनरेट सिस्टम. नाउ वी विल डिस्कस about the perturbation theory. So now let the true wave function in perturbed state h psi n is equal to En psi n. ये perturbed wave function है और ये perturbed energy level है, जहाँ h क्या है, हैमिल्टोनियन है.
So now the assumption that H prime is small suggests that we expand the perturbed eigenfunction and eigenvalue as power series in H prime. So this is most conveniently accomplished in terms of a dimensionless real parameter lambda, where lambda is very much less than 1, such that the 0 first powers of lambda, it corresponds to the 0 first and dash dash orders of the perturbation calculation. So here we replace H prime by lambda H prime and express psi and E as power series in lambda. So फिर जो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ परटर्बेशन अप्रॉक्सीमेशन है वो हमको कोफिशिएंट से मिल जाएंगे करस्पॉन्डिंग पावर ऑफ लैम्डा से. फिर फाइनल रिजल्ट में हम लैम्डा को 1 रख देते हैं. तो अब हमारा देखो परटर्ब्ड वेव फंक्शन जो है ये, इसको हमने इस तरह से एक्सपांड किया लैम्डा के पावर्स में. इसी तरह En जो है परटर्ब्ड एनर्जी को En नॉट प्लस लैम्डा En1 प्लस ये इस तरह से एक्सपांड किया. इससे देखिए आप खुद समझिए, यदि परटर्बेशन नहीं होता, मान लो शाई n1 ये नहीं होता, तो ये जो है हमारा शाई n कितना रहता, शाई n नॉट, जो कि एग्जैक्टली सॉल्वेबल है. इसमें ये एज अ करेक्शन ऐड हुए हैं शाई n1 और शाई n2, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकेंड ऑर्डर करेक्शन. ये किसकी वजह से है? ड्यू टू द परटर्बेशन H प्राइम. ओके, सो अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख दें यदि, तो हमारे पास इस तरह से आएगा. यहाँ H को हम क्या लिखें? H नॉट प्लस लैम्डा H प्राइम. ये शाई n की वैल्यू रख दी, इधर भी En की वैल्यू रख दी और शाई n की वैल्यू. अब हम क्या करें, लैम्डा के अलग अलग पावर्स को इकट्ठा कर लें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में. तो आप देखेंगे H नॉट शाई n नॉट प्लस ये तो यहाँ से आ गया H नॉट शाई n नॉट प्लस यहाँ पर लैम्डा यदि आप बाहर निकालें तो एक बार आएगा ये वाला H नॉट शाई n1 प्लस H प्राइम शाई n0. फिर लैम्डा स्क्वायर यदि आप कॉमन लैम्डा स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्या क्या आएगा? H नॉट शाई n2 प्लस H प्राइम शाई n1, है ना. फिर इसी तरह से आगे जाएं, इस तरफ से भी तो हम इस तरह लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को अलग अलग लिख लेते हैं. अब बिकॉज वी नो इफ द सीरीज इज प्रॉपरली कन्वर्जेंट, सो इन ऑर्डर दैट द इक्वेशन में वैनिश for all value of lambda, the coefficient of the powers of lambda must vanish separately. तो हम क्या करें, इक्वेट कर लेते हैं. सबसे पहले हम लैम्डा टू द पावर 0 के कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, H नॉट शाई n नॉट और En नॉट शाई n नॉट. तो ये पहला इक्वेशन बना. दिस इज अवर अनपर्टर्ब्ड वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन. ठीक है. फिर दूसरा हम देखें, यदि हम लैम्डा के कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो हमको फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन का इक्वेशन मिल जाएगा, ये वाला. ठीक, और इसी तरह हमको सेकंड का मिल जाएगा. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस इवैल्यूएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी. तो जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी हमको निकाल, ये तो हमको नोन है शाई n0 और En0, इसको तो हमको नहीं निकालना है. हमको क्या निकालना है, शाई n1 और En1 निकालना है. तो इसके लिए हम ये इक्वेशन नंबर 7 यूज़ करेंगे. तो सपोज हमने इक्वेशन नंबर 7 लिया, दैट इज इवैल्यूएशन. ये इक्वेशन नंबर 7 लिख दिया यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद हमको शाई n1 को कैलकुलेट करना है यदि, तो हम पहले इट इज़ कन्वीनियंट टू कैलकुलेट दिस बाय एक्सपांडिंग इट इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शन, नॉन आइगन फंक्शन. तो हम इसको पहले जो कंप्लीट थ्योरी ऑफ आइगन फंक्शन है उसके हिसाब से शाई n1 को सपोज करें दिस समेशन m am साई m0. ठीक, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें. यहाँ पे रखोगे साई n1 की जगह क्या रखेंगे, समेशन am साई m0 यहाँ रख दिया. तो ये हो गया H नॉट साई m0, H प्राइम साई m0 यहाँ भी रखेंगे साई n1 की जगह. अब आप जानते हैं कि H नॉट साई m0 कितना है, इट इज़ Em नॉट साई m नॉट. तो ये इसमें पहले, क्योंकि ये तो हमारा इक्वेशन है ना जो आप डालते हैं, ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ा था, H नॉट शाई n नॉट इज इक्वल टू En. यदि यहाँ m हो गया तो यहाँ भी m हो जाएगा. तो ये m आ गया, Em नॉट हो गया. तो आप देखो ये वाला और ये वाला टर्म क्या है, एक से है. इसको इस तरफ ले आए, यहाँ पे Em नॉट आएगा और यहाँ पर En नॉट है. तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन Em नॉट माइनस En नॉट शाई m नॉट प्लस H प्राइम दिस इज इक्वल टू En1 शाई n0. अब यदि हमको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी En1 निकालना है तो यहाँ से शाई n0 को किसी तरह से हटाना पड़ेगा, है ना. ये कैसे हटेगा, सो वी कैन से दैट multiplying this equation 10 by psi n naught conjugate and integrate over the space variable. So यदि हम इसको इंटीग्रेट करें
पूरा, और किससे मल्टीप्लाई करें, शाय एन नॉट कॉन्जुगेट से। तो ये देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट चीज़ें हैं तो ये बाहर रहेंगी, ये शाय एन ज़ीरो नॉट शाय एन नॉट कॉन्जुगेट शाय एम नॉट आ गया, और यहाँ पर ये वाला यहाँ पर भी आएगा इंटीग्रेशन, इधर भी शाय एन नॉट मल्टीप्लाई होगा इसमें और इसमें होगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब आपको ये मालूम है इक्वेशन से, हमारे पास ये इक्वेशन है कि शाय आई नॉट कॉन्जुगेट शाय जे नॉट डी टाउ इज इक्वल टू 0 होता है इंटीग्रेशन यदि आई जे के बराबर नहीं है, और आई जे के बराबर है तो ये 1 हो जाता है। यहाँ पर तो शाय एन नॉट और शाय एन नॉट बराबर ही है, शाय एन नॉट कॉन्जुगेट, यदि ई एन 1 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, शाय एन नॉट कॉन्जुगेट शाय एन नॉट, तो ये वाला बचेगा, और ये दोनों बराबर हैं इसलिए ये 1 हो जाएगा और ये आ गया। लेकिन यहाँ पर जो है ओके, अब इस वाले इसमें देखें फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल है इसमें देखो, यदि मान लीजिए m और n बराबर नहीं है सपोज, तो ये 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इस तरह से बन गया ना, ये बना। अब यदि इसको हम ऐसे लिखें समेशन ए एन इंटीग्रेशन शाय एन नॉट कॉन्जुगेट शाय एम नॉट डी टाउ, और इधर बाहर क्या है ई एम नॉट माइनस ई एन नॉट, ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के ना। अब यदि मान लीजिए n और m बराबर नहीं है तो ये वाला इंटीग्रल 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन n और m बराबर है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि n चाहे m के बराबर हो या नहीं हो, ये वाला इंटीग्रल तो 0 हो नहीं है, तो इसलिए हमारे पास बचा कितना, सिर्फ ये बचा en1 यहाँ से, क्योंकि ये है इज इक्वल टू सिर्फ ये टर्म बचा, ये तो 0 हो जाएगा चाहे n m के बराबर हो या ना हो। बराबर नहीं होगा तो ये वाला इंटीग्रल 0 हो जाएगा, बराबर होगा तो ई एम माइनस ई एन, इसलिए ई एन 1 की वैल्यू कितनी आ गई, इंटीग्रेशन शाय एन 0 नॉट h prime psi and this. So this is called the expect first order perturbation energy for a non-degenerate state of a system is just the expectation value of first order perturbed Hamiltonian. क्योंकि ये है क्या, this is expectation value of first order perturbed Hamiltonian. ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन शाय एन 1 भी हमको निकालना है ना। तो हमने ये वाला जो इक्वेशन लिखा था, कौन सा, इक्वेशन नंबर 10 से फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने ई एन 1 निकाला था ना, इक्वेशन नंबर 10 यहाँ से, इसमें ई एन 1 निकाला था इस इक्वेशन से। अब इसी को आगे फिर हम फिर से उसी इक्वेशन को लिख रहे हैं और उससे अब देखो ई एन 1 तो निकल चुका है ना, हमको क्या निकालना है, अब समेशन ए एम निकालना है, क्योंकि यही उससे रिलेटेड है, शाय एम से रिलेटेड, तब हमको शाय एम मिलेगा, है ना। शाय एन 1 निकालना है तो इनको निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसमें हम क्या करें, अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रेट करें, सेम वही किया। और यहाँ पर लेकिन हमने एक्सक्लूड किया कि यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि m और n बराबर नहीं है, क्योंकि m और n बराबर हो गए तो ये तो यहीं 0 हो जाएगा ना, इसलिए हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि m इज़ नॉट इक्वल टू n हियर। ओके, अब m n के बराबर नहीं है और बाकी ये समेशन है a m ई एम माइनस ई 0 किससे इंटीग्रेट किया, इससे कॉन्जुगेट से, ठीक, तीनों टर्म में, इसमें भी कॉन्जुगेट से, इसमें भी, तीनों में कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देखिए फिर क्या होगा, क्योंकि ई एम नॉट माइनस ई एन नॉट तो बाहर आ गया, समेशन ए एम बाहर आ गया, और इंटीग्रल में क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं m और m तो इसलिए ये 1 हो गया, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इतना बचा, और राइट हैंड साइड क्या हो गया, यहाँ पर देखो ई एन 1 कॉमन आएगा, बाहर आएगा, तो ये ई एन 1 यदि यहाँ बाहर आ रहा है तो इसमें इंटीग्रल में क्या बचेगा, शाय एम नॉट शाय एन नॉट डी टाउ। अब हमें पता है m और n बराबर नहीं है, पहले ही ले चुके हो, तो ये इंटीग्रल 0 हो गया, तो इसलिए ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ओके, इसलिए सिर्फ ये बचा, तो हमारे पास आ गया ए एम इज इक्वल टू, यदि इसको लिखें दैट इज माइनस इंटीग्रेशन शाय एम नॉट कॉन्जुगेट h प्राइम शाय एन नॉट डी टाउ अपॉन ई एम नॉट माइनस ई एन नॉट वेयर m इज नॉट इक्वल टू n। सो वी कैन से दैट द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी एंड वेव फंक्शन कैसे आएगा, अब क्योंकि ई एन निकालना था ना, परटर्ब्ड एनर्जी कितनी आएगी, जो ई एम नॉट थी वो तो नोन थी, उसमें ये करेक्शन और जुड़ेगा लैम्डा टाइम्स दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टन, और शाय एन में क्या जुड़ेगा, शाय एन नॉट, बिकॉज यहाँ माइनस है लैम्डा, समेशन दिस m इज इक्वल टू 0 टू दिस एंड दिस इक्वेशन। यहाँ पर प्राइम है वो क्या देख रहा, समेशन ओवर द वैल्यूज ऑफ m फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, बस एक्सक्लूडिंग m इज इक्वल टू n, इसलिए यहाँ समेशन प्राइम का मतलब क्या है कि m इज इक्वल टू n नहीं है, बाकी सारे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी फॉर नॉन डिजेनरेट सिस्टम।
अब इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर एनर्जी और सेकेंड ऑर्डर वेव फंक्शन आप खुद ले सकते हैं। जो हमने इक्वेशन नंबर यहाँ पर जो सॉल्व किया था, ये यहाँ पर हमने इस इक्वेशन से अभी शुरू करके किया है। अब आप लोगों का काम है कि आप इस इक्वेशन से शुरू करके सेकेंड ऑर्डर एनर्जी और सेकेंड ऑर्डर वेव फंक्शन निकालेंगे। ओके, ये शिव की बुक में आपको मिल जाएगा, तो आप शिव की बुक इसमें रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।